Well, it's a hard-fought game. Eventually, probably 170 to win, but just not enough put up by Peshawar Zalmi with that batting lineup that Islamabad United have. They survive another day, and they'll have to see Lahore Qalandars tomorrow, so no break for them. Peshawar Zalmi exit from HBL PSL 7, and Azhar Mahmood and men have all the reason to be happy. Good fight given eventually. It's all about the result that counts. Wahab Riaz, hard fought, 4 out of 5 games that they won, and in the important one, they've lost today. Let's have a look at the match summary as it started off. Peshawar Zalmi in their right to bat first. 169 for 5 was a tough outing there for the batters. Kamran Akmal, the leading scorer. And then Islamabad United, you miss Alex Hales a couple of times and then he will make you pay for it. 62 of 49, 170 scored. Islamabad winning this one by 5 wickets. Hello and welcome to the Pitchside Studio. We've got a full house yet once again. We'll talk about Eliminator 1 over here, which just now Islamabad United have won by 5 wickets. So here we are, of course, we've got Waqar Younis to my left, and it's been a tough game, and of course Marina Iqbal is in front of me. We'll dissect this game. I'm going to bring in my co-host as well. She's a bit unhappy. I think she was with Peshawar Zalmi. Were you, no? No, I don't know why you've thought that. Maybe the look on your face, or maybe the game. I'm with the winner. I'm with the winner of the HBL PSL. That's a smart way. Okay, Marina, tell us, did you feel that it was a game that Peshawar could have won with 169 on board, or is always a tough ask? No, I think they could have done better, and they had the resources, but execution was not there. I think they did not read the pitch well, especially Wahab Riaz. The pace wasn't working for them. And again, the biggest letdown was giving Alex Hales 4 chances. 1 stumping, 1 run out, 2 drop catches. And it will hurt you, definitely. It's going to hurt you. The caliber of that man actually just took the game away initially from them. And then I think there were a couple of decisions that could have been made better. I felt that Benny should have been given the 18th over and Wahab coming in the last one. But it probably wasn't. अच्छा, hindsight में तो वकार भाई, these are always things that you can think of कि ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था. But start जैसे हुआ Alex Hales की, वही जिस तरह उन्होंने बात की, when you're dropping a player of his caliber, you know, चला एक दफा नहीं, दूसरी आप उसको जब इतने chances दे रहे हो तो then he will make you pay for it. Yeah, I mean, एक आधा चांस भी मेरा मतलब वारा नहीं खाता इस तरह की सिचुएशन में. और एलेक्स हेल जैसे बंदे को फिर who is probably one of the best batsmen in the world. So I feel के you know let's start from the beginning. I feel कि उन्होंने थोड़े runs भी कम किए मेरे which I feel. और जिस तरह मरीना ने कहा ना कि उन्होंने पिच थोड़ी सी गलत रीड की. They thought के इतने ही रन चाहिए, शायद 160-65. पिच ऐसी थी कि जहाँ पे शायद 180 चाहिए था. और जब शोएब मलिक ने जिस तरीके से शुरू किया था, I thought वो थोड़ा सा लेट शुरू किया था. They should have just gone for more runs in the middle overs a little bit. So I think that's where they lost. I know catches गिरे, run out miss हुए, बहुत सारी चीजें हुई, तो they played badly. Simple as that. जब इतना बुरा खेलोगे तो of course you deserve to lose. चलिए आइए, अब हो गया एलिमिनेटर 1. एक नजर डालते हैं प्लेऑफ ट्री पर. प्लेऑफ की 4 टीम्स में से एक अब पैकअप हो चुकी है, पेशावर ज़ल्मी. यानी अब कल एलिमिनेटर 2 में मुकाबला होगा लाहौर कलंदर का इस्लामाबाद यूनाइटेड से. टफ है ओवरनाइट वापस आना और फिर लड़ना, और वो भी एक नॉकआउट गेम में. कैसा देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस में, जो आपको था एक्सपेक्टेड था कि आ ही जाएगा इस्लामाबाद लाहौर के अगेंस्ट? नहीं, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, एंड आई थिंक अभी जिस तरह शादाब वापस आ गए, हेल्स का रोल था, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आजम ने जिस तरह अपना रोल आज समझा, जिस तरीके से क्रिकेट खेली, एंड पे जाके जब जरूरत थी अटैक किया. बॉलर्स ने हसन अली जिस तरह के रिदम में आज लगे. आई फील कि इस्लामाबाद के पास ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है, और आज की जीत से, क्योंकि पेशावर एक ऐसी टीम थी नहीं जो आसानी से आप जिनके अगेंस्ट मैच जीते, तो आज कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा उनके पास.
Well, what a call has it been for Islamabad United. Alex Hales का वापस आना बहुत ही लकी साबित हुआ. Unlucky for Peshawar, but जिस तरह के उन्होंने chances दिए, एक stumped missed stumping, फिर उसके अलावा catch drop भी हुआ. So run out chances भी थे जो कि miss हुए, जिसकी वजह से all of them feature in our 11 moment of the day. देखिए, इनमें से मेरा नहीं ख्याल कोई भी चांस इतना मुश्किल था. आई थिंक अच्छा कीपर जो कि हारिस बहुत अच्छा कीपर है. आई थिंक ये नॉर्मल कलेक्शन थी. आई थिंक थोड़ा सा जल्दी कर गए कि मैं जल्दी से पकड़ लूँ, स्नैच कर लूँ. अपॉर्चुनिटी नजर आई थी और ये हाँ जोर से जरूर लगा हुआ था, तेज आया था, लेकिन आजकल की क्रिकेट में प्रोफेशनल लेवल पे और मैच शुरू ही हुआ था. तो आई थिंक इस तरह के कैचेस करने चाहिए जो कि इन्होंने मिस किए. लुक एट दैट. और एक और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देंगे और कंफ्यूजन थी इस्लामाबाद के कैंप में इस टाइम, बहुत कंफ्यूजन थी. इनको समझ नहीं आ रही थी कि आया ये रन ज़्यादा है कम है, किस तरीके से खेलना है. सो आई फील के उस टाइम इनको पकड़ा जा सकता था. अगर वहाँ पे अगर अर्ली ऑन पावर प्ले की जब हम बात करते हैं, अगर अर्ली ऑन 2-1 विकेटें गिर जाएं तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होती है. लेकिन सारा खराब कर लिया. ये तो है, सारा खराब कर लिया. सारा ही खराब कर लिया. सारा कुछ. चलिए इस पे और बात होगी, लेकिन आपको एक बार फिर लेके चलते हैं हमारे प्लेयर ऑफ द मैच पे. इनकी परफॉर्मेंस पॉकेट्स में बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन बड़ी वैल्यूएबल थी. पहले तो इन्होंने बॉलिंग शानदार की, 3 ओवर में 15 रन देके 1 आउट किया. उसके बाद बैटिंग पे आए तो वैल्यूएबल 19 नॉट आउट बनाए 13 गेंदों पर. फहीम अशरफ आज के प्लेयर ऑफ द मैच. देखिए, बहुत मेच्योरिटी के साथ आए हैं और अब जिस तरह की स्किल इनके पास है, उसकी एक्सिक्यूशन बहुत अच्छी करते हैं. लेंथ इनको समझ आ जाती है किस बैटर के खिलाफ किस विकेट पे किस तरह की पेस के साथ करना है, और वो इनके लिए वर्कआउट भी कर रही है. अगेन बैटिंग में बहुत हैंडी है, बड़ी हिट्स मार लेते हैं, इनिंग्स बिल्ड करनी भी आती है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी है, और एक क्लीन इनको रोल दिया गया है. और जब आपके पास क्लैरिटी हो माइंड में तो फिर एक्सिक्यूशन और ज़्यादा आसान हो जाती है. और आई थिंक कि किसी भी कैप्टन के पास अगर फहीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर हो तो वो काफ़ी अपने आप को लकी समझे. अच्छा वकार भाई, फहीम अशरफ also went through a sort of a bad patch. बीच में उनकी थोड़ी बॉलिंग में भी डिप आया था, बट ability वाइज अगर उनको देखा जाए तो ही इज बीन वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स इन वन ऑफ द HBL PSLs. उसके अलावा बैटिंग भी कर लेते हैं, टेस्ट में भी हमने उनकी बैटिंग देखी है, तो ऑलराउंड एबिलिटी उनकी है और आज उन्होंने हमें ग्लिम्पसेस दिखाए हैं. ज़ैनब, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट उनके साथ ज़रूर रहा है कि वो इंजर्ड रहे हैं. उनके नी का भी इशू रहा है, फिर उनके शोल्डर का भी थोड़ा बहुत इशू रहा है. अभी भी देखते हैं जब थ्रो करते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है. तो इंजरीज़ में उनको काफ़ी तंग किया रखा है. लेकिन यह मैं अभी भी समझता हूँ कि जब व्हेन इट कम्स टू हिटिंग बहुत ही क्लीन हिटिंग करते हैं, और स्पेशली जब आप वहाब की तरह जोन में बॉल करेंगे तो फिर वो नहीं बख्शते. तो आई फील के यस सम सुपर्ब हिटिंग, लेकिन सम रियली ऑर्डिनरी बॉलिंग आल्सो. इस्लामाबाद की बॉलिंग की अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अंडर द पंप थे हसन अली, 3 विकेट लिए उन्होंने, 30 आउट दिए, लेकिन 3 विकेट्स इंपॉर्टेंट थी उनकी. फिर फहीम अशरफ, हार्ड टू कम बैक जब आप पे इतना प्रेशर हो. ये पहली बार नहीं किया हसन ने. ये ही मेक्स अ कम बैक वेदर इट्स इंजरी और वेदर इट्स अ बैड परफॉर्मेंस. सिकंदर, होता ये है कि जब आप इस टूर्नामेंट में पहले भी देखा है कि अगर आप फॉर्म अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लंबा टूर्नामेंट है, अगर आप खेलते चले जाएंगे और आपकी फॉर्म बुरी है ना, तो फिर आपसे आया नहीं जाता वापस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक. लेकिन अगर आप इफ़ यू स्मार्ट इनफ और इफ़ योर मैनेजमेंट इज स्मार्ट इनफ, विच आई फील के इस्लामाबाद की मैनेजमेंट काफ़ी स्मार्ट है, और उन्होंने सोचा कि ओके जस्ट पुल हिम आउट ऑफ द गेम. आई डोंट थिंक कि इतनी लंबी चौड़ी को बड़ी इंजरी थी उसको, लेकिन पुलिंग आउट फॉर फ्यू गेम्स and then unleashing him, I think that really helped him, and I felt his energy was much better today. I think Marina unleashed काफी अच्छे टाइम पे किया, because you have the test series coming up against Australia. This will give them a lot of confidence. Both Hassan Ali and Fahim Ashraf are part of the squad. बिल्कुल ऐसा है. और अगेन वही बात सिकंदर वाली कि कम बैक करना आसान नहीं होता. बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, और इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा भी कि आपने ऑफ डेज में क्या एक्स्ट्रा किया, तो ही सेड कि मैंने अपने बेसिक्स पे ज़्यादा काम किया. जब एक प्लेयर को पता हो कि उसके, और अगेन वो बात आती है कि मैनेजमेंट और कैप्टन का ट्रस्ट कितना है, जब उन्हें पता हो कि आई एम वर्दी ऑफ इट, तो फिर काम करना थोड़ा और आसान हो जाता है. और आगे अब इस तरह की फॉर्म कैरी करेंगे फहीम अशरफ भी और हसन अली भी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरह का रिदम आज मैंने उनका देखा है वो पुराने वाले हसन अली नजर आए. कल हमारी बात हो रही थी, आप कल थे नहीं, मैं बात कर रहा था कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर में, खासतौर पे इस फॉर्मेट में. लाहौर शायद काफ़ी इस मामले में रिजिड रहा है, लेकिन आज हमने देखा लियाम डॉसन 3 नंबर पे खेले पिछले मैच में, आज हसन अली से ऊपर आए.
तो ये छोटे-छोटे डिसीजंस हैं, आई थिंक स्पॉट पे ऑन द स्पॉट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें, होता ये है कि T20 क्रिकेट इतनी फास्ट मूविंग गेम है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन करने होते हैं। एंड आई थिंक इस्लामाबाद मास्टर है इस मामले में। मैं 2 साल लिंक्ड रहा हूँ डीन जॉन्स, यू नो द लेट डीन जॉन्स, ही वाज आवर हेड कोच, इट वाज वेरी स्मार्ट इन दैट मैटर्स, और वो भी इसी तरह करता था। आई थिंक हसन ने और हसन चीमा ने एंड रेहान ने, आई थिंक ही इज लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक लॉट ऑफ डिसीजंस जो नज़र आते हैं मुझे, दे आर फ्रॉम डीन जॉन्स टू हिम टू देम एंड देन पास्ड ऑन टू आई गेस अजहर, ऑफ कोर्स उसको भी जाएं। तो आई थिंक ये सारा जो है ना, दैट इज हिज लेगेसी एंड यू नो वेरी स्मार्टली डन। दैट्स व्हाई दे कॉल, यू नो, अ रियली फाइन साइड। 2 साल इसीलिए ये लोग जीते हैं। अच्छा, जो हो गया मैच में उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर उस सिचुएशन में आपके सामने हसन अली और डॉसन खड़े हो तो आप किसको भेजते? हसन अली बॉलिंग कर रहे होते। नहीं, जो लास्ट बैट सिचुएशन अभी हुई है जो कि ऊपर इनको भेजा। चाहिए थे 10 रन करीबन, और अब जब आउट हुए हैं आजम। मेरे लिए जो चेंज था ना वो यही था कि 18th ओवर बेनी को देना चाहिए था। मैक्सिमम रन्स आप लास्ट ओवर में रखते हैं कि, और आपको जब पता हो कि स्पेशली बीइंग अ बॉलर आप उस तरह नहीं डिलीवर कर पा रहे, आप पेस ऑफर कर रहे हो, आपको पड़ रही है, बैटर जो है वो चढ़ा हुआ है आप पे एज अ बॉलर, तो फिर आई थिंक बेनी को ओवर देते हैं। आई थिंक व्हाट सिकंदर ट्राइंग टू से कि जो बैटिंग में आप किसको भेजते हैं, तो आई पर्सनली फील कि लियम डॉसन वाज अ गुड चॉइस। आई नो बैटिंग में आई थॉट कि ही इज आस्किंग कि उसमें आप बॉलिंग ऐसे डक किया। कौन जाता फिर? डेफिनेटली लियम डॉसन वाज अ गुड चॉइस। हां, इसमें अच्छा जी। अच्छा, ये तो डिबेटेबल ही है कि चॉइस अच्छी थी नहीं, कि उनके लिए तो चल गया जिस तरह भी डिसीजन थी। लियम डॉसन को सिलेक्ट किया उन्होंने, ऊपर भेजा। हसन अली ऑफ कोर्स थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हैं, अब विकेट्स लेके शायद उनको और फॉर्म मिले, और बैटिंग तो हमने उनकी देखी है। बट इस नोट पे जो है हम एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे वी विल बी लुकिंग एट द मास्टर ब्लास्टर। वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। HBL PSL 7 में 32 मैच हो गए, एलिमिनेटर 1 तक हम जा चुके हैं, और अब बारी है कि हम उसको बैठ के डाइसेक्ट करें और देखें कि किसने क्या गलती की। मास्टर ब्लास्टर की अगर बात करें, जिनका इतना जिक्र था कि वो वापस आ गए हैं, उन्होंने अपने नाम की लाज रखी और कर गए आज 62-49 पर, और एक तरह से मैच ले गए ज़ल्मी के हाथ से। He's a fantastic player. I mean, Alex Hales को मैंने पहली दफ़ा नहीं देखा ऐसे करते हुए। He's a kind of a batsman, जब ये when he gets going, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बॉलिंग करना, क्योंकि चारों तरफ ग्राउंड के इतना अच्छा खेलते हैं, उसी तरह चौके अच्छे मारते हैं, उसी तरह बड़ी हिट भी अच्छे मारते हैं। सो आई फील कि Alex Hales, honestly for me, I feel that he is one of the top batsmen in the world. Unfortunately, इनकी अपनी गलतियों की वजह से ये इंग्लैंड से ज़्यादा देर नहीं खेल सके, बट यू नो for sure he's one of the top cricketers. And it shows what kind of impact he has on Islamabad United. I mean, आप देखिए रन रेट का डिफरेंस देखिए, with him is 9.52 और उनके बगैर is 7.50। तो वही जो आप बात कर रहे थे कि जो पावर प्ले में इंपॉर्टेंट रन्स और अच्छा शुरुआत देना, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, उनके होने से जो है मरीना अभी तो शुगर करें वो सिर्फ हेल्स है। अगर इसे स्टर्लिंग मिलाओगे जो शुरू में हुआ था टूर्नामेंट के, वो तो प्रॉब्ली 15 की एवरेज से जाते थे। अगेन बात ये ऑन एंड ऑफ हो चुकी है कि क्योंकि इनका स्टांस इतना वाइड ओपन है, और ही नो सिर्फ ये वन डायमेंशनल प्लेयर नहीं रहे, ऑफ साइड के बाहर भी आप कराते हैं तो वहाँ भी इनकी रीच है, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, क्रीज को डेप्थ उसकी अच्छी यूज करते हैं, ही नोज कि कौन सा बॉलर किस प्लान के साथ आ रहा है। लेग साइड से नीचे उतर के भी खेलते हैं, तो बहुत मुश्किल है एज अ बॉलर कि इनके अगेंस्ट कोई एक प्लान के साथ आ सके, क्योंकि अगेन वही बात है कि जिस तरह की आज भी शॉट्स हमने देखी, स्पिनर्स ने थोड़ा सा लूप देने की कोशिश की, अवे भी रखा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, और फिर अगर चांस मिल जाए तो ही नोज हाउ टू मेक इट वर्थ। मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं गए भी थे, मेरे लिए ये लक्ष्मी चौक कहीं ठहरे होंगे पीछे, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि ये होके आ गए हैं पूरा। अंदर पहली बॉल पे आउट हो जाते ना, फिर तो आपको लगना था कि ये पता नहीं क्यों हो गया है। फिर बुलाया क्यों था, ये कहते हैं। अच्छा जी, शाइनिंग प्लेयर ऑफ द मैच, फहीम अशरफ की भी बात हुई थी, एलेक्स हेल्स की भी हुई थी, लेकिन शाइनिंग प्लेयर जो हैं हमारे, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे गेस्ट इन स्टूडियो वुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। वी टॉकिंग अबाउट सलमान इरशाद एंड हिज ब्रिलियंट यॉर्कर्स। अपने ईमान से बताइए कि आपको कुछ चीज़ें याद नहीं दिलाती हैं जब आप इसको देखते हैं, और ये जब वो
जब वो अब एक अच्छी जगह पे बॉल कर, स्पेशली इस तरह का बॉल. नहीं वाकई वो I'm just being little mean. But yeah, I mean, माइक हेजमन के साथ मेरी यही होती है. वो कहते हैं जी T20 is all about entertainment, it's all about sixes, fours and all that. I think this is entertainment. This is pure entertainment. Although ये probably short time के लिए होता है, but if you can get it right, Yorker is the best delivery I feel in cricket in all formats. Yes, test match cricket में it's a little bit different. You have to hit the length. But look at that. That is amazing. इसको कहाँ मारोगे आप शॉट? ये बताइए मुझे. So आज जो वहाब ने मिस किया, इरशाद ने बहुत अच्छे तरीके से किया. Although reverse swing हो रहा था, I thought Wahab didn't really nail it. Normally he does. लेकिन you know, and that is what the reason. But he was outstanding. He was, you know, beautifully bowled. You know, right on the money. Unlucky भी रहे क्योंकि फहीम को आते भी एक दो गेंद जो ऐसे हुए थे. They were so close to that off stump line. He could have actually taken 5 or 6 wickets. You know, the way he was bowling. एक फर्क था, वो जिसकी याद दिला रहे हैं, वो नाखून भी टूटना था पहले, तो नेल उसके बाद जाके स्टंप को लगे. किसकी मैं बात कर रहा था? मुझे कुछ बताओ. मैं तो लसित मिलेंगे अच्छा, की बात कर रहा चलिए आप लसित मिलेंगे बात करें. एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जब हम देखते हैं इस किस्म की कोई बॉलिंग टेल इन हो रही है बॉल, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली अब नजर नहीं आती मॉडर्न डे क्रिकेट में, खासतौर में T20 में. या तो इस आर्ट को इतना परफेक्ट नहीं कर पाया है कोई, क्योंकि गिनती के लोग हैं जिसको इतना अच्छा करते हैं. T20 क्रिकेट में क्योंकि एक फास्ट मूविंग है और एक यू नो बॉल उतना पुराना नहीं होता. दिस गेम इज जब गेंद पुराना होता है तब रिवर्स स्विंग प्ले में. अभी भी क्यों मैं कहता हूँ कि अभी लास्ट कुछ 3-4 मैचों में आपने देखा कि कंडीशंस आर ड्राई और पिचेस ऐसी हैं कि जो इन पे 2-2 3-3 दफा मैच हो गए. सो दे वेरी स्क्रबी सॉर्ट ऑफ पिचेस जो कि बॉल को स्कफ अप कर देती हैं, जिसकी वजह से आई फील के रिवर्स स्विंग प्ले में आ रहा है, विच इज गुड फॉर द गेम आई फील. सर मेरे ख्याल से हमने काफ़ी डिस्कशन की है ऑन द ड्रॉप्स इन टुडेज गेम, बट कुछ अच्छे कैचेस भी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैचेस. आइए देखते हैं सेफ हैंड्स. ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा यूनिट है, फील्डिंग यूनिट है, और उसकी एग्जांपल जो कैप्टन है वो लीड करते हैं. ग्राउंड फील्डिंग अच्छी है इनकी, कैचेस अच्छा जज करते हैं. हालांकि शुरू में हमने देखा था कि इशू हो रहा था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद एफर्ट नज़र आती है हर एक प्लेयर से. ये भी एक अच्छा कैच था, आसान नहीं होता, टेक्निक अच्छी थी, साइडवेज गए और ये खैर इजी कैच था. लेकिन ओवरऑल जब बात करते हैं कि आपने डबल्स को कट डाउन करना है, आपने रीड करना है कि बैट का फेस कैसे आ रहा है, डबल्स के लिए कौन से बैटर्स जा रहे हैं नहीं जा रहे. स्पेशली आई थिंक स्लो वंस पे जब बड़ी हिट लगती है और जब ऊपर बॉल जाता है तो आसान नहीं होता उसको जज करना. तो दे आर अ फैंटास्टिक यूनिट. आई थिंक यही फर्क है जो हमने देखा कि ये कैचेस पकड़े गए और जो अपॉर्चुनिटीज ज़ल्मी के पास आई उन्होंने मिस कर दी, स्पेशली एलेक्स हेल्स वाली. ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ फॉलो विकेट्स देखेंगे. दोनों टीमों ने 5-5 गंवाई थी. देखते हैं आपके सामने कौन सा आता है. Back at the pitchside studio, and Islamabad United is going to be a happy camp today. बहुत ही अच्छी performance उनकी रही. They'll obviously have to repeat this performance tomorrow as well if they are to meet Multan Sultans in the final. But for now, let's have a look at the fall of wickets of Peshawar Zalmi. एक्सेलेंट बॉलिंग. आई मीन इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया क्योंकि हो ये रहा था कि अर्ली ऑन गेंद थोड़ा सा किक कर रहा था. ऑड स्लोअर वन जरूर की, लेकिन अच्छा देखने में आया कि हसन अली ने फोर्स से बॉल किया, पेस से बॉल की. यू नो ही मेंट बिजनेस आउट देयर. यू नो शादाब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जब जाहिद बॉलिंग करने आया तो आई थॉट कि ही माइट नॉट बॉल, ही इज जस्ट प्लेइंग एज अ बैट्समैन, लेकिन ही बॉल्ड सुपर्बली. द यॉर्कर वाज परफेक्ट. आई थिंक वो जो मरीना ने भी बात की ना कि यू नो इज लुकिंग गुड, क्योंकि आगे बड़ी मेजर सीरीज आ रही है एंड ये जो विकेट्स हैं इसको एक कॉन्फिडेंस देंगी और यू नो उस सीरीज के लिए आई होप इज वर्किंग ऑल्सो, बिकॉज टेस्ट मैच क्रिकेट इज अ लेंथी गेम, सो उसमें आपको एंड्योरेंस लंबी चाहिए होगी, बट दैट विल बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, दैट्स फॉर श्योर. इंटरेस्टिंग डिसीजंस हैं इस्लामाबाद के थिंक टैंक के. आज 2 अटैकिंग ऑप्शंस रखे, 2 लेग स्पिनर्स के साथ गए. जफर गौर को आज रेस्ट करवाया. यू वर लाइकिंग द आइडिया जब गेम शुरू नहीं हुआ था?
बिल्कुल वही बात जो पहले हो रही थी कि आपको एडजस्ट करना है। आप अगर रिजिड रहेंगे, रिजिड मीन्स कि प्रेडिक्टेबल हो गए, तो बहुत आसान है T20 में आपको रीड करना कि क्या प्लान है और उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन आ जाती है। बट येस, हमने देखा है कि स्पिनर्स में अगेन वही बात है कि कभी स्किड कर रहा है, कभी ग्रिप कर रहा है, आसान नहीं हो रहा। बाउंड्री 72 मीटर्स की हैं, तो हर बाउंड्री मारना भी हर बॉलर को आसान काम नहीं है। तो ये सोचते हैं और अगेन ऑपोजिशन के ऊपर होमवर्क करके आते हैं और फिर अपनी ऑप्शंस देखते हैं। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि जाहिद भी जो है वो उस तरह छोड़ के गेंद नहीं करते, थोड़ा तेज भी करते हैं, अच्छी लेंथ पे करते हैं, तो स्किड ऑन होता है। और शादाब तो ऑब्वियसली जिस तरह आए हैं वापस, जो भी है गेम मिस किए हैं, लेकिन ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, तेज़ फेंकने की बात हो रही है तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉल बहुत ही ज़्यादा तेज़ फेंकते हैं, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली वहाब रियाज। सलमान निशात भी थे, उनकी यॉर्कर्स बड़ी ज़बरदस्त थी, बट आज फास्टेस्ट डिलीवरी जो है वो वहाब रियाज की है। लेट्स हैव अ लुक। हाँ, वहाब रियाज का ये है कि जब when he gets it right और वो जब इसका रिदम आया हो तो पेस तो ऑफ कोर्स इज अप देयर। सी द बॉल वाज स्विंगिंग, बट मसला ये था कि बॉल उस जोन में नहीं किया जहाँ करना चाहिए था। बॉल वाइड किए, अपना रिदम खराब किया। आई फील, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फास्ट बॉलिंग और व्हेन यू टॉक अबाउट हिम बीइंग द क्विकेस्ट, ही विल ऑलवेज कम आउट विद समथिंग लाइक दैट। 149 इनकी आज टॉप स्पीड थी, और ऑफ कोर्स जब पेस आती है तो फिर जाती भी उतनी जोर से है, क्यों नहीं? वो तो मेरा ख्याल है जो इनके नंबर्स हैं उसमें अंदाजा हो ही गया है इस विकेट पे स्पेशली, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगी, एग्जांपल उनके सामने थी, सलमान जिस तरह बॉलिंग कर रहा था, बेनी कर रहे थे, पेस ऑफ काम कर रही थी, आसान नहीं था मारना। लेकिन जब आपको पेस मिलती है तो T20 क्रिकेट में तो सिर्फ बल्ले रखने की देर होती है, और 52 दिया है इस टोटल पे, तो अंदाजा हो ही रहा है। आपके टाइम पे पेस ऑफ कोई चीज़ थी, ऐसी कोई चीज़ थी पेस ऑफ इन योर टाइम? फेस ऑफ था, Face off था, face off नहीं था, exactly. All right, thank you so much, वकार भाई. We'll probably be seeing you tomorrow, and we'll be taking a short break. और जब break से वापस आएंगे तो plenty more to discuss. We'll be joined by a new guest as well, so don't go anywhere. वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। हम बात कर रहे हैं एलिमिनेटर 1 की, जहां अभी मुकाबला हुआ और इस्लामाबाद इस मैच को जीत गया 5 विकेट से। हमारे साथ मौजूद हैं बाजिद खान। बाजिद खान से हम बात करेंगे, इस्लामाबाद के बड़े फ़ैन हैं, उधर से इनका ताल्लुक भी है और बहुत खुश भी हैं। तो उनको पूछते हैं कि आज इनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया इस मैच में, अगर हम इस्लामाबाद की जीत की बात करें। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? वो आखिरी ओवर डॉसन की हिटिंग। देखें, अगर आप जो प्लान पेशावर ज़ल्मी का देखें तो वो उनका प्लान यही था कि हम रन ऑन द बोर्ड और उसके बाद रिवर्स स्विंग, जो कि हो रहा था रिवर्स स्विंग, बट बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स वापस आए, जो बैटिंग डेप्थ थी उसकी वजह से वो मैच जीते। इन दी एंड आपके अगर 8वां 9वां या 7वां 8वां आके अगर बड़ी हिट लगा दे तो फिर मैच आपकी तरफ हो जाता है। और मेरे ख्याल से कि अगर ये प्लेयर्स इनके वापस ना आए होते तो ये पेशावर ज़ल्मी आराम से मैच जीत जाते। अच्छा, अगर ऑब्वियसली मरीना बात कर रहे हैं कि वो स्टंपिंग भी हो जाती और सारी चीज़ें भी हो जाती, डू यू थिंक चेंज, डू यू थिंक मैच का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता है? आई नो इट्स लाइक नाउ लुकिंग बैक एंड एवरीथिंग, बट जस्ट अ क्वेश्चन। नहीं, डेफिनेटली अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें जो हेल्स ने की है और जिस तरह पार्टनरशिप बिल्ड करते गए, प्रेशर जब तक हेल्स रहे हैं पिच पे तो पेशावर ज़ल्मी पे ही रहा है, और हर ऑड बाउंड्री वो लेते रहे हैं, हर ओवर में बीच में सिंगल डबल्स निकालते रहे, पार्टनरशिप बिल्ड होती रही है, तो इसका तो फैक्ट होता ही है। जब अगेन मैं वही बात करूंगी, एलेक्स हेल जैसे कैलिबर के बैटर को अगर आप चांस देंगे तो आधा मैच तो आप वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन यस, ये इफेक्ट करता है, और अगर अर्ली विकेट गिर जाती, हेल्स चले जाते, प्रेशर इस्लामाबाद पे आ जाता क्योंकि चेस कर रहे थे, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। अच्छा, अगर बात करते हैं चेस की, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि एलेक्स हेल पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी या बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो आउट हुए तो 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने बाउंड्रीज लगाई, शॉट्स लगाया और मेक श्योर किया कि फिनिशिंग लाइन क्रॉस हो। आजम खान, उनके साथ फ़हीम अशरफ बाउंड्रीज में। और सिचुएशन ऐसी थी जब फ़हीम आया, स्पेशली बॉल रिवर्स हो रहा था, सलमान निशात उस वक्त बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन ये क्वालिटी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड फुल स्ट्रेंथ में होती है तो बैटिंग डेप्थ जो है इसी पे ये बेस करती है अपनी सारी थियरी, और सारी प्रोसेस जो है वो बैटिंग डेप्थ की वजह से ही इस्लामाबाद यूनाइटेड इस किस्म के मैचेस खेलती है। बॉलिंग सारे टूर्नामेंट में, इवन व्हेन शादाब वाज बॉलिंग वेल,
हम यही कहते थे कि इनकी बॉलिंग उस कैलिबर की नहीं है या इतना पेनिट्रेटिव नहीं है, लेकिन बैटिंग डेप्थ पे कोई डाउट नहीं है। और आजम खान की हिटिंग एबिलिटी में भी कोई डाउट नहीं है, बिकॉज हमने देखा है कि पहले वो कोयटा के लिए खेल रहे थे, अब यहाँ पे आए थे, यू नो लॉट ऑफ आईज ऑन हिम, ऑन हिज परफॉर्मेंस, और आज बड़े क्रूशल टाइम पे उन्होंने वो हिट्स मारी। मैच्योर हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। एक जो पिछले मैच में बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब इन्होंने अपना 100 मिस किया, लेकिन टेकिंग दैट, मतलब राइट एट द एंड पावर हिटर हैं और उनका रोल भी पावर हिटिंग का है। आसिफ अली जब आउट हो गए तो फिर फिनिशर का रोल जो है वो आजम ने ही प्ले करना है, और मेरे ख्याल उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि क्वेटा छोड़ के वो इस्लामाबाद आए हैं नए फ्रेंचाइज में, प्लस द फैक्ट कि अब उनका रोल बड़ा डिफाइंड है, कीपर प्लस फिनिशर। चलिए भाई, अब वक्त आ गया है कि हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम अपने फैंस को देखते जाएं। आज कुछ मायूस हुए हैं, कुछ बहुत खुश थे, लेकिन HBL PSL 7 का जो मेला है वो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बड़ी तादाद में आज भी लोग आए, और पहले तो ऐसा लगा कि शायद इतना क्राउड नहीं आएगा, लेकिन ज़ल्मी का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, और ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के साथ तो लोग हैं ही। एंजॉय किया सभी ने। अल्लाह हाफिज कहा ज़ल्मी को, और कल फिर आएंगे चीयर करने को इस्लामाबाद में। We enjoyed a lot, but ये है कि वहाँ रियाज की बॉलिंग की वजह से हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। उसने अच्छा परफॉर्म किया पिछले मैच में, लेकिन इस मैच में अच्छा नहीं परफॉर्म किया। स्पेशल क्रेडिट आजम खान को और उसके बाद फ़हीम अशरफ को जाता है, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया। वो कल इंशाल्लाह लाहौर के साथ मुकाबला होगा और इंशाल्लाह जीतेगी। पेशावर ने बॉल कोशिश की, बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन इस्लामाबाद ने भी बहुत अच्छा खेला। जो लास्ट में छक्का मारा है, आई लव इट, दिल जीत गया। बहुत ज़्यादा खुश है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वो आए स्टेडियम में मैच देखा है, और आई वुड से कि क्रेडिट गोज टू PCB एंड ओवरऑल टीम, जिन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे और फैमिली के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ था। सिकंदर कह रहे हैं कि कल भी आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने, लेकिन कल मेरा ख्याल है कम ही होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स, बिकॉज लाहौर का मैच है इन लाहौर, सो विल बी इंटरेस्टिंग। बट अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है मजीद डिस्कशन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। हम मौजूद हैं आपके साथ, डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेटर 1। तो अब कुछ देखते हैं ज़बरदस्त फील्डिंग, क्योंकि फील्डिंग ही आपको मैच जितवा सकती है। बॉलर मेहनत करे और आप बॉल छोड़ दें तो फिर की फ़ायदा। तो आइए देखते हैं कैचेस। इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसे पहले भी बात की थी, अच्छा फील्डिंग यूनिट है, और अगेन ग्राउंड फील्डिंग हो, थ्रोज हो, डाइव्स हो, कैचेस हो, हर जगह ये स्पॉट ऑन ही रहे हैं। और रीड बहुत अच्छा करते हैं, पेस को भी, बैटर्स को भी। ये अच्छा कैच था वकास का, अच्छी टेक्निक थी पीछे जाने की। और अगेन वही बात है कि क्रूशल टाइम पर प्रेशर ज़रूर होता है, बड़े मोमेंट्स भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल इनको जब भी देखा है मैंने, फील्डिंग इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं तो 100% प्रैक्टिस में भी नज़र आते हैं, और वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है ऑन फील्ड। बिल्कुल, कुछ रिफ्लेक्ट ये भी होती है कि कुछ उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए थे, तो ओवरऑल तो फील्डिंग अच्छी थी, बट दोज कैचेस दे मेक इट टू आवर oops मोमेंट ऑफ द डे। ये बैक टू बैक विकेट्स हो जाती फ़हीम अशरफ के लिए, और लगा ऐसे कि अतहर महमूद किसी भी टाइम कंफर्टेबल नहीं थे बॉल के नीचे। ये वाला शायद कुछ ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन पहुँचे ही नहीं। जाहिद महमूद थे गालबन, लेकिन ज़्यादती ये हुई है कि मेरे ख्याल अगर पहले 10 ओवर ज़ल्मी के निकालते तो उसमें पूरे 15-20 सेकंड या आधे 15-20 मिनट का आपने जाना भी तो होता है। देखिए रन आउट, स्टंप, कैच, सब कुछ देख ली, वो हम सब देख आप चुके हैं। लेट आए, तो oops फिर क्या होगा? उससे भी ज्यादा था ये जैसे कौन सा ज्यादा? जाहिद महमूद ने ये मुश्किल बना दिया। अच्छा भाई, ब्रेक लेते हैं, मुझे सब कह रहे हैं ब्रेक पे चलो। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जीत की खुशी देखेंगे, और वो है ऑफ कोर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि वो चले गए हैं एलिमिनेटर 2 में।
वेलकम बैक टू द पिच साइड स्टूडियो। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज बहुत ही खुशियां मना रहा होगा बिकॉज ऑफ कोर्स दे थ्रू टू द नेक्स्ट गेम जो कि कल होगी मुल्तान सुल्तान्स के लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। नॉट मुल्तान सुल्तान, दे आर ऑलरेडी इन द फाइनल्स, बट खुशियां तो वो मना रहे होंगे। तो क्योंकि मैं खुशियों की बात कर रही हूँ, आइए देखते हैं जीत की खुशी। Well, this is the interesting concept. Artist है इमरान कुरैशी, सितारा इम्तियाज होल्डर, और इनका concept भी interesting है because blue water like paint splashes हैं. They're all representative of energy of cricket, and बहुत ही ज़बरदस्त amalgamation है of art and cricket जो उन्होंने दिखाई है. Different सा concept है, abstract है, और इसके अलावा it implies life, peace and harmony. पहली दफा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है. You've got to give credit because it's absolutely fantastic effort from Imran Qureshi. इस्लामाबाद यूनाइटेड वापस आएगा और खेलेगा लाहौर कलंदर से, जो होम टीम है. ये होगा एलिमिनेटर 2, और आपको सबको पता है कि जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा मुल्तान के पास. तो अब गलती की गुंजाइश कहीं भी नहीं है. 6:30 बजे शाम हम आपके पास आएंगे. वो मैं देख रहा था बाजिद साहब, वो भी किस तरह से किट हुआ. मैंने कहा बचपन में इनको बड़ी डांट पड़ी हुई ये करने पे, लेकिन अभी उनको इनाम मिल रहे हैं. वो जो पड़ी थी मुझे तो समझ नहीं आ रही थी क्या एनर्जी, कौन सा एनर्जी वैसे फेंको. और हाँ जी. अच्छा, मैं एक बात करना चाहूंगा जल्दी से क्विकली बिफोर हम जाएं कि आज के इस मैच में जो हमने देख लिया वो तो हो गया. अब कितनी जल्दी टर्न अराउंड पॉसिबल हो सकता है एक टीम के लिए, क्योंकि वक्त तो है नहीं. तो इस्लामाबाद थोड़ा सा टायर्ड हो गया या फर्क नहीं पड़ता? आई थिंक इस वक्त तो T20 है, और इस वक्त तो वो मतलब एड्रेनलिन पे ही खेलेंगे. उनके प्लेयर्स वापस आए हैं, मैच जीते हैं. और आप यही याद रखें कि पिछले सीज़न ये सारे मैच जीते आए थे और फिर प्लेऑफ्स में हार गए थे. इस दफ़ा शायद वो जो ग्रुप स्टेजेस में इनको प्रॉब्लम हुई है तो वो बुरा वक्त शायद निकल गया हो, वो यही होप कर रहे होंगे. लेकिन इस वक्त ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. प्लेऑफ्स हैं, ज़ाहिर है एड्रेनलिन इतना है, बड़े मैच हैं तो एक मैच एक्स्ट्रा सही, उनको तो ट्रॉफी पे नजर है. It might be a case of them peaking at the right time because we've already seen कि मुल्तान तो चलो पीक करते 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 फाइनल्स में पहुंच गए हैं, बट लाहौर कलंदर्स कब पीक करेगा? बिकॉज वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंच गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं उनके काफी. प्रॉब्लम्स है. उम्मीद करते हैं कल ना लड़खड़ाएं, क्योंकि अब वही बात आ जाती है कि इट्स डू और डाई मोमेंट, और जो उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बैटिंग में ही ज़्यादा चल रहे हैं, वो उन्हें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. क्योंकि इस्लामाबाद अच्छा मोमेंटम लेके आ रहा है, हर प्लेयर उनका परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग हो बैटिंग हो. हसन अली इज़ बैक, तो ये आसान नहीं बनाने वाले लाहौर कलंदर के लिए. मैं तो सोल्यूशन दे चुका हूँ, कल कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ नहीं मानेंगे. नमक ऊपर खिला लें, सॉल्ट को ऊपर खिला लें. मैं कह रहा हूँ फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो कहा ना, बैटिंग में प्रॉब्लम्स हैं. ऑर्डर में पूरा ऑर्डर थोड़ा तो फखर जमान की जगह खिला लें. किसकी जगह? फखर जमान की जगह सॉल्ट पे खिला. सात क्या है? 7. चले देखना पड़ेगा कि कितना सॉल्ट है और कितना पेपर है कल के गेम में, बट मिर्च मसाला तो जरूर होगा बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द HPL PSL. थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी ओवर हियर. आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज कवरेज, और हम मिलेंगे कल. शब बखैर, गुड नाइट.